Hello everyone, I am Shilpa Kapoor, student of Sri Krishna College of Education. Today, I'm going to present a video on the topic environmental degradation and its impact on humans. When natural habitats are destroyed or natural resources are depleted, the environment is degraded. Environmental degradation results from factors such as urbanization, population growth, intensification of agriculture, rising use of transport, climate change, deforestation, and so on. Thus, environmental degradation consequences affect the health and the right to health of the people. Before going further on the topic, I would like to explain the meaning of environmental degradation. Environmental degradation is the deterioration of the environment through depletion of resources such as air, water, soil. Means जो हमारा पर्यावरण है, जो उसकी कंडीशन है, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, वर्स होती जा रही है. अब वो वर्स किस लिए हो सकती है? ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज. जो हमारे रिसोर्सेज हैं जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, वो धीरे धीरे डिप्लीट होते जा रहे हैं. द डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, जो हमारा पर्यावरण है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है. द एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जानवर हैं, वो सब ख़त्म होते जा रहे हैं. और जो इन्वायरमेंट है उसमें पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है. दैट मीन्स जो हमारे इन्वायरमेंट की जो कंडीशन है वो डे बाय डे वर्स होती जा रही है. दैट इज इन्वायरमेंटल. Going further on the topic, now we're going to discuss the causes of environmental degradation, the reasons due to which our environment is getting worse and worse day by day. So first we will talk on pollution. Like pollution is also one of the major causes due to which our environment is getting degraded. So the term pollution refers to any substance that negatively impacts the environment or organisms that live within the affected environment. So पोल्यूशन कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट को नेगेटिव तरीके से हार्म करती है, जो कि अफेक्ट करती है. और as we all know that there are 5 major types of pollution, that is air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, light pollution. So these are the major different types of pollution. And when we talk about air pollution, the pollution which affects the quality of air, that is air pollution. And any harmful substances which affects the quality of water, it is termed as water pollution. And soil pollution, the harmful substances present in soil which deteriorates the quality of soil, then it is termed as soil pollution, and so on. So pollution is also considered to be one of the major causes for environmental degradation. Now the second most important cause for environmental degradation is overpopulation. Now what is overpopulation? It refers to the condition of having a population so dense as to cause environmental deterioration and impaired quality of life or a population crash. So overpopulation को हिंदी में हम बोलते हैं जैसे जनसंख्या में वृद्धि होना. ऑब्वियसली जब कंट्री ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगी, जब कंट्री में रिसोर्सेज से ज़्यादा लोग हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली हमारा क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज जो हमारा इन्वायरमेंट है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, उसकी कंडीशन वर्स होती जाएगी. ऑब्वियसली जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ होगा, जितना ज़्यादा यूसेज बढ़ेगा उतनी ज़्यादा क्वालिटी ख़राब होती जाएगी. बिकॉज जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट, उतनी ज़्यादा नीड्स बढ़ेंगी, और जितनी ज़्यादा नीड्स बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी. जब रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो क्वालिटी है, जो हमारी क्वालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ जाएगा. सो इसलिए हमारा इन्वायरमेंट भी क्या है, उसकी कंडीशन हमारी वर्स हो जाएगी.
Now, the third most important cause for environmental degradation is landfills. So, first we will discuss about its meaning. It is a system of trash and garbage disposal in which the waste is buried between the layers of earth to build up low-lying land. हमने देखा होगा कि अगर हम अपने आसपास के एरियाज़ में देखें, दिल्ली में भी बहुत सारे डंपिंग ग्राउंड्स बनाए जाते हैं जहाँ पे गार्बेज, कूड़ा करकट, मतलब इन चीज़ों को डंप किया जाता है. अब डंप करने से बेसिकली होता क्या, डंप करने से उन लैंड पे जब हम लोग चीज़ें जाके जो गार्बेज है, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उनको अगर हम डंप करते हैं, उससे क्या होता है, जो उस लैंड की जो सॉइल की क्वालिटी है वो डिटोरिएट हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है. सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर सॉइल डिग्रेडेशन, क्योंकि हमारी सॉइल की क्वालिटी जो है ख़राब हो रही है. बिकॉज हम कूड़ा करकट जाके अगर हम उस सॉइल में डंप करेंगे या उस वहाँ पे जाके अगर हम कूड़े करकट को डंप कर आएंगे, अब वो कुछ भी हो सकता है, वो प्लास्टिक की बॉटल्स भी हो सकती है, वो पॉलीथीन्स हो सकती है, पॉली बैग्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वेस्ट मटेरियल्स हो सकता है, किचन का वेस्ट हो सकता है, एनीथिंग इट कुड बी. सो इससे क्या होता है, लैंडफिल करने से क्या होता है, वो उस पर्टिकुलर एरिया को एक प्रॉपर डंपिंग ग्राउंड बनाया जाता है और उस डंपिंग ग्राउंड में लेयर्स बन जाती हैं जहाँ पे कूड़ा डंप होता जाता है. तो उससे क्या होता है, हमारी सॉइल की भी क्वालिटी ख़राब होती जाती है. ये भी एक हमारा मेन रीज़न है इन्वामेंटल डिग्रेडेशन का. इससे क्या होता है, हमारी सॉइल की क्वालिटी, जो हमारी लैंड की क्वालिटी है, वो ख़राब होती जाती है. Now, the fourth important cause that we're going to study about environmental degradation is deforestation. Now, let's first talk about its definition. Deforestation is the permanent removal of trees to make room for something besides forest. This can include clearing the land for agriculture, grazing, or using the timber for fuel, construction, or manufacturing. सो जब हम डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम पूरे एरिया से या उस पर्टिकुलर एरिया से सारे ट्रीज़ को कट डाउन कर देते हैं. अब जो ट्रीज़ को काटा जाता है वो मे बी या तो ग्रेजिंग लैंड बनाने के लिए, या फिर ट्रीज़ की वुड को यूज़ करने के लिए फॉर वेरियस अदर एक्टिविटीज़, लाइक फॉर मेकिंग एनी फर्नीचर, फॉर एनी अदर पर्पसेस, उस लकड़ी को यूज़ करने के लिए, या फिर एग्रीकल्चरल लैंड के लिए अगर हम क्लियर कर रहे हैं सारे फॉरेस्ट को, फ्यूल बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, या किसी इंडस्ट्री के सेटअप होने के लिए हमने पूरे एरिया में से डिफॉरेस्टेशन कर दिया, मतलब सारे पेड़ हटा दिए. सो अल्टीमेटली जब हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जब हम पेड़ को वहाँ से हटा रहे हैं, तो वहाँ पे जो एक नेचुरल हैबिटेट है, वो ऑब्वियसली जहाँ पेड़ होंगे वहाँ हमारे नेचुरल वाइल्ड लाइफ भी ज़रूर कुछ ना कुछ होगी, बर्ड्स होंगी, बर्ड्स नेस्ट होंगे उनके, प्लस उसके बाद वेरियस एनिमल्स लाइक मंकीज़, जो भी पेड़ पे मतलब रहते हैं, वो सारे उनका नेचुरल हैबिटेट है, वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो जब हम डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं तो इट इज़ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़. सो ये भी एक मेन फैक्टर माना जाता है हमारा इन्वामेंटल डिग्रेडेशन का. ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण है जिसकी हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही है. Now we will going to study the impact of environmental degradation on humans. कि जो हमारा पर्यावरण है उसके डिग्रेड होने से हमारी ह्यूमन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. So now we will going to study about this. Now the first point is air pollution is one of the top 10 killers which causes death in India, as it causes various diseases like heart diseases, lower respiratory infection and trachea, bronchus and lung cancer, etc. As we all know that pollution is one of the major cause for environmental degradation, so it also affecting human in the same way also, because as air is getting polluted, it causing various harmful diseases to the humans, various airborne diseases, as we have already studied, like respiratory infections, lung cancers, etc.
Many lives are also affected due to various waterborne diseases, as water get infected due to effluents and chemicals which are straight away discharged from factories. So waterborne diseases are also affecting the life of humans, because if they drink that water, they get infected and it causes diseases. Now, third point, due to massive deforestation, trees are being cut down, due to which it is causing a lot of ecological imbalances, and also fresh air and oxygen is not available for humans. Plants are considered to be the natural air purifiers, but since due to deforestation, it creating a lot of trouble. As we have already studied that people are cutting down trees to set up industries for the requirement of furniture, for the environment of wood. So people are clearing the forest. Actually, they are just disturbing the ecological imbalance. They are creating a ecological imbalances in the environment, and also people are not able to get fresh air, because if all the trees are being cut down, then how our air get purified, because plants are considered to be the natural air purifiers. So oxygen is not there, then obviously at the end people going to suffer. Population of the country is increasing at a very rapid phase, due to which resources are being getting depleted so fast. Since already we have discussed that overpopulation, obviously जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज का यूसेज बढ़ेगा. जब यूसेज बढ़ जाएगा तो रिसोर्सेज की क्वालिटी में भी खराबी आ जाएगी. तो अल्टीमेटली हमारा इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, डिग्रेड हो रहा है. Since ozone layer is depleting due to rapid increase in pollution level, it causing the ultraviolet rays of the sun. जो ओजोन लेयर है वो भी हमारे एटमॉस्फेयर से डिप्लीट होती जा रही है. ओजोन लेयर बेसिकली हमारे जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज हैं उसको प्रिवेंट करता है अर्थ पे आने से. सो सिंस इतना पोल्यूशन है इन्वायरमेंट में कि वो जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है. इससे क्या हो रहा है, अगर डायरेक्ट ये हार्मफुल रेज किसी भी ह्यूमन में पड़ती हैं तो इट कॉजेज वेरियस डिजीजेस इन ह्यूमंस. द डिटोरिएशन ऑफ इन्वायरमेंट कैन बी अ ह्यूज सेटबैक फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री. इट ऑल्सो, अब क्या है, इन्वायरमेंट के ख़राब होने से टूरिज़्म इंडस्ट्री पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है. क्योंकि इम्पैक्ट इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारा जितना भी इन्वायरमेंट है वो सारा डैमेज होता जा रहा है, हमारा ग्रीन कवर हटता जा रहा है. तो ऑब्वियसली जब इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा तो टूरिज़्म इंडस्ट्री भी बूम नहीं कर पाएगी. नाउ the huge cost that a country may have to borne due to environmental degradation can have big economic impact. अब इससे क्या हो रहा है, ह्यूमन पे एक और इम्पैक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ रहा है. बिकॉज इन चीज़ों को ठीक करने के लिए भी कंट्री को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ रहा है. तो इससे क्या हो रहा है, एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ रहा है ह्यूमंस पे. क्योंकि अगर इन लैंडफिल्स हैं इनको साफ़ करवाने के लिए, जो डंपिंग ग्राउंड्स बने हुए हैं उनको क्लियर कराने के लिए भी खूब सारा पैसा चाहिए. ठीक है, जो वापस से ट्रीज़ लगाने के लिए, प्लांटेशन करने के लिए भी बहुत सारा, वापस से ग्रीन कवर लाने के लिए भी बहुत सारे पैसों की रिक्वायरमेंट है. सो अल्टीमेटली क्या है, इसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ रहा है ह्यूमंस के ऊपर. नाउ कुछ अब हमें प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेने चाहिए जिससे हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से हमें राहत मिले. सो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, एप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट. डिग्रेडेशन मस्ट बी फ्रेम्ड. ऑब्वियसली गवर्नमेंट बना रही है बहुत सारी पॉलिसीज़ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन से रिलेटेड. रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ energy must be used instead of non-renewable resources. The species must be protected from their extinction. Water resources must be protected from the materials and chemicals which is released from industries and factories. Energy saving plan must be framed so that people can use them in a appropriate manner. So
अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, देन डेफिनेटली हम इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं या हम इस सिचुएशन को वर्स होने से बचा सकते हैं। हम अपने इन्वायरमेंट को